Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss a next topic, which is changes in foreign exchange rates. In this lecture, we are going to discuss what are the effects of changes in foreign exchange rates on the financial statements. As you know, for example, an organization purchases an asset on a specific date, and foreign exchange rates are involved because we are purchasing that asset from an international body or international organization which is outside our country. So we purchase it in dollars. हम मसलन ये कि पाकिस्तान में है और इसको हम डॉलर्स में परचेज कर रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने, हम पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इस एसेट को परचेज किया और उसको रिकॉर्ड कर लिया अपने रुपीस में। लेकिन जिस वक्त रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग डेट आती है, फॉर एग्जांपल दिसंबर 31, उस वक्त जो है वो एक्सचेंज रेट चेंज हो जाता है। तो हमें क्या इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद तीसरा मरहला ये आता है कि जिस वक्त पेमेंट डेट आती है, जिस वक्त सेटलमेंट डेट आती है, और वी आर गोइंग टू पे द अमाउंट पेबल टू द सप्लायर, again exchange rate changes. So what accounting treatment is required? So all these things are being dealt by IAS 21, and we are going to discuss it in detail in this standard. So in overview, we will see what are the effects of the changes in foreign exchange rates, and IAS 21 will give the definitions of functional and presentation currency, will give the account of the determination of the functional currency, how we will determine that a specific currency is a functional currency, and we will see illustrations of the foreign currency transactions, how these are happening, and how we are converting it into our functional currency and reporting it on the final reporting date. And then will be a translation to a presentation currency and translation of a foreign operation as well. So let's start with the definitions. IAS 21 includes the following definitions. First of all, the most important definitions is the functional currency. Functional currency is the currency of the primary economic environment in which the entity operates. So functional currency जो है जिसके अंदर एक फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के अंदर फंक्शनल करेंसी पाक रुपी है। और उसके बाद a foreign currency, second definition is a foreign currency is a currency other than the functional currency of the entity. Second is definition is foreign currency. In an example I have just mentioned, the dollar currency is a foreign currency. If we are going to purchase a machinery and the supplier demands from us the payment in dollars, then this is the foreign currency. Third one is an entity's presentation currency is the currency in which the financial statements are presented, and normally presentation currency is the same as that of the functional currency, because if a specific organization is working in Pakistan and its obviously functional currency is PKR, then its presentation currency is PKR as well. Foreign operation. What is foreign operation? Is an entity that is a subsidiary, associate, joint arrangement or branch of a reporting entity, the activities of which are based or conducted in a country or currency other than those of reporting entity. For example, there is an organization based in Pakistan and it has a subsidiary working in Afghanistan. So foreign operation, the subsidiary working in Afghanistan is obviously the foreign operation. So how the functional currency is determined, let's see. When determining its functional currency, an entity should consider the following main factors. So there are a few points which have to be considered while we determine that a specific currency is a functional currency. First point is the currency that mainly influences sales price for its goods and services.
and this is often the currency in which these prices are denominated and settled. यानी एक मुल्क में अगर एक ख़ास एसेट है, एक चीज़ है जिसको परचेज किया जाना है, तो उसकी जो प्राइस है उसको उसी में ही लिखा जाएगा. फॉर एग्जांपल ₹10,000 इज़ ए प्राइस ऑफ ए स्पेसिफिक यूनिट, और उसकी पेमेंट भी उस मुल्क में उसी तरीके से ही की जाएगी. Second point is the currency of the country whose competitive forces and whose regulations mainly determine the sales prices of the goods and services. As you know, what are the competitive forces? You are a student of management sciences. So competitors, buyers, sellers, government, tax authorities, and so on are the different forces, and who, and there is government who applies the regulations, so they determine the sales price of the goods and services. So third point, the currency that mainly influences labor, materials and other costs of providing goods and services, which is often the currency in which such costs are denominated and settled. तो एक मुल्क में फॉर एग्जांपल मटेरियल को परचेज किया जाता है, तो लेबर जो है उसको हायर किया जाता है, कंस्ट्रक्शन का काम हो या कोई और काम हो, तो उसके अंदर जो है वो उस मुल्क की करेंसी दैट मेनली इन्फ्लुएंसेस, जो कि मटेरियल्स और लेबर की जो है प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करती है, दैट इज़ कॉल्ड द फंक्शनल करेंसी. तो मेनली जो है इसमें फंक्शनल से मुराद यही हुआ कि एक मुल्क में जो एक करेंसी चल रही है, फंक्शन कर रही है, दैट इज़ फंक्शनल करेंसी. तो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में फंक्शनल करेंसी भी क्या है, जैसे कि मैं आपके साथ पहले बात कर चुका. अब हम आते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस की तरफ, कि जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दी, पाकिस्तान में काम कर रही है एक ऑर्गेनाइजेशन और वो परचेज करती है यूरोप से एक मशीनरी. सो वो मशीनरी ऑब्वियसली आइदर इट वुड बी परचेज्ड इन यूरो, pound or dollars, so it will remain a foreign currency. IAS defines the foreign currency transaction as a transaction that is denominated or requires settlement in a foreign currency. So बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि एक, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले मिसाल में कहा कि डॉलर में आपने एक चीज़ परचेज की है और जिसको आपने सेटलमेंट भी एक फॉरेन करेंसी में ही करना है. This definition includes transactions arising when an entity buys or sells goods or services whose price is denominated in a foreign currency. बिल्कुल ठीक है, यही बात पहले definition में भी हो चुकी. Second point, borrows or lends funds when the amounts payable or receivable are denominated in a foreign currency. तो इसमें फर्दर ये आ जाता है कि कंपनी जो है किसी से बोरो करती है और किसी को उधार देती है फंड्स when the amounts payable or receivable are denominated in a foreign currency, or maybe this is in connection with the payment or receivable of the same transaction. उसी एक ट्रांजैक्शन के लिए फर्ज करें अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को फंड्स जो हैं वो बोरो करना पड़ते हैं या लेंड करना पड़ता है, तो और उस पेएबल या रिसीवेबल जिसको के अदा करना है वो अगर फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेट किया गया है, शो किया गया है, रिकॉर्ड किया जाता है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो खैर फंक्शनल करेंसी से रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन उसकी इनवॉइसेस में वो फॉरेन करेंसी में ही शो हो रहा है, तो लिहाजा ऐसी ट्रांजैक्शन जो है वो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन कहलाए. थर्ड पॉइंट इज दैट the organization otherwise acquires or disposes of assets or incurs or settles liabilities denominated in a foreign currency. तो इस तीसरे पॉइंट में शायद एसेट्स का एक जिक्र है कि मतलब दिस में भी फिक्स एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, कि उनको एक्वायर किया जाए या उनको सेल आउट किया जाए, और इसके नतीजे में जो है कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है या वो लाइबिलिटी को पे करता है, और उस लाइबिलिटी की डिनोमिनेशन फॉरेन करेंसी में. और फॉरेन करेंसी की डिनोमिनेशन होने का मकसद ये है कि कंपनी को किसी भी तरीके से पेमेंट्स जो है फर्ज करनी पड़ती है डॉलर्स में, फॉरेन करेंसी में, व्हाटसोएवर इट इज़, यूरो, और या उसे कुछ अमाउंट रिसीव करना पड़ेगी जो कि यूरो में है या
डॉलर्स में है। तो तीनों पॉइंट्स को मैं दोबारा एक मरतबा रिवाइज करता चलूँ कि पहले पॉइंट में बाइज और सेल्स, गुड्स और सर्विसेज, इसमें तकरीबन महसूस होता है, वाज़ेह महसूस हो रहा है कि इट इज़ रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यानी कि गुड्स विच आर टू बी रीसोल्ड, यानी हमारी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर जो हम गुड्स को परचेज करते हैं और उसको सेल आउट करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनता है, शायद ये उससे रिलेटेड है और वो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो है जनरली बोरो या लैंड करने से मुतालिक है, फंड्स, कोई लोन लिया है एक ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी को उधार दिए हैं फंड्स, तो ऑब्वियसली उसके कनेक्शन में जो है जो अमाउंट पेबल या रिसीवेबल होगी वो फॉरेन करेंसी में शो हो रही है। और तीसरे पॉइंट के अंदर शायद नॉन करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स का जिक्र है जो कि कंपनी ने ख़रीदे हैं या उसने बेच दिए हैं और उसके नतीजे में उसने कुछ अमाउंट जो है वो उससे कुछ लायबिलिटी क्रिएट हुई है और उस लायबिलिटी को या उसने पेमेंट की है और वो फॉरेन करेंसी में शो हो रही है। तो इन तीन मेजर ऑब्वियसली इसमें जो है तकरीबन तमाम तर ट्रांजैक्शंस को कवर कर लिया गया है। एक जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, जितनी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। दूसरी आपकी एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड है जो कि बैलेंस शीट को कवर कर रही है। पहला पॉइंट जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की वजह से इनकम स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को कवर कर रहा है। तीसरा पॉइंट जो है हमारी बैलेंस शीट को कवर कर रहा है और दूसरा पॉइंट जो है वो भी बैलेंस शीट से रिलेटेड है जिसमें कुछ रिसीवेबल या पेबल्स का जिक्र है। तो एक तरह से IAS 21 ने ट्रांजैक्शंस को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करके ये शो किया है कि फॉरेन करेंसी का मामला इन तीनों कैटेगरीज में से किसी एक में वकूअ पज़ीर हो सकता है। तो अब हमारे सामने क्या मरहला दरपेश है? वी हैव टू ट्रांसलेट these foreign currency transactions into functional currency. So when an entity enters into a transaction denominated in a currency other than its functional currency, that transaction must be translated into functional currency before it is recorded. तो अपनी जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने से पहले उसको फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और यहीं से सारी पेचीदगी पैदा होती है कि जब हम उसको जो है एक फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को अपनी फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्ट करके उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो फिर वो फॉरेन करेंसी तो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रहती है। तो जैसे जैसे वो चेंज होगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें भी उसको अपनी फंक्शनल करेंसी के अंदर अमाउंट को चेंज करना पड़ेगा। सो लेट्स सी। सबसे पहला मरहला आ जाता है इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ द फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। जैसे कि मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि इनिशियली जिस वक्त रिकॉग्निशन करने का मामला होगा, ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन ए फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द एंटिटीज फंक्शनल करेंसी बाय अप्लाइंग द स्पॉट एक्सचेंज रेट between the functional currency and the foreign currency as at the date of the transaction। तो उस डेट पे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और वो वैल्यू रिकॉर्ड हो जाएगी। For example, an organization in Pakistan purchases an asset from China which costs 10,000 yuans. So we will convert that amount into PKR, and 10,000 yuan multiplied by the spot exchange rate, which is 22.74 today. So this will give rise to 2,27,400 PKR। तो पाक रुपये में ये अमाउंट बन जाएगी 227,400 rupees। So asset will be debited with this amount and a liability will be recorded as well with the same amount। So before going ahead, there is a small definition of spot exchange rate, which is the exchange rate for immediate delivery। Now we come to the next slide, which is subsequent measurement of the same transaction। Subsequent measurement means हमें दोबारा से उसकी मेजरमेंट करनी पड़ेगी। रीज़न क्या है? हम तो पहले इसकी मेजरमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक एसेट परचेज किया और हमने उसको 227,400 रुपीज़ में उसको रिकॉर्ड कर लिया।
लेकिन दोबारा मेजरमेंट की ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि अब हम उनको पेमेंट करने जा रहे हैं, और अगर तो स्पॉट रेट जिस तारीख को हमने उनको पेमेंट करनी है वो वही है जिस तारीख को हम उसी रेट जैसा ही आज रेट चल रहा है जब हमने इसको परचेज़ किया था, तो फिर तो ठीक है। लेकिन एक्सचेंज रेट तो चेंज होते रहते हैं, बेशक वो चंद जो है वो पॉइंट्स के हिसाब से ही क्यों ना चेंज हो, तो लिहाजा हमें दोबारा से मेजरमेंट करनी पड़ेगी, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, दोबारा मेजरमेंट। सो इसकी एक ऑब्वियस पॉइंट आता है जिस वक्त हम उसको सेटलमेंट करने जाते हैं। व्हेन कैश सेटलमेंट अकर्स, द पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अ फॉरेन कस्टमर, the settled amount should be translated using the spot exchange rate on the settlement date. तो अगर फ़र्ज़ करें कि हम सेलर हैं और हमने जो है वो पेमेंट रिसीव करनी है एक फॉरेन कस्टमर से, तो ऑब्वियसली हम इसको रिकॉर्ड करते हुए दोबारा से रिकॉर्ड करेंगे। इफ़ दिस अमाउंट डिफर्स फ्रॉम द रिकॉर्डेड from that recorded when the transaction occurred, there will be an exchange difference which is taken to profit or loss account of the period in which it is recorded, in which it was occurred. तो जिस टाइम पीरियड में जो है ये अकर हुआ है, ट्रांजैक्शन हुई है, उसी से रिलेटेड जो है टाइम पीरियड में ये लॉस भी रिकॉर्ड करना होगा ताकि हम मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो कर सकें। So next we come to an illustration. Okay, before going to the illustrations, there are a few topics left. I am going to cover those. तो अब नेक्स्ट इसमें ये है स्टूडेंट्स के ट्रांसलेशन टू अ प्रेजेंटेशन करेंसी. For example, there is a division of BMW company in South America. तो साउथ अमेरिका में एक कंपनी जो है उसकी डिवीजन काम कर रही है, और वो वहाँ की करेंसी के अंदर ही जो है वो काम करती है। लेकिन जिस वक्त वो उस डिवीजन ने अपनी रिपोर्टिंग करनी है तो उसको प्रेजेंटेशन करेंसी में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको जो है वो जर्मनी के हवाले से जो है वो यूरो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, तो यानी although most entities present their financial statements in functional currency, IAS 21 allows entity to use a different presentation currency if they wish. So if a company has been in America and it is doing all its transaction, it is a subsidiary of a specific company and it is doing all its transaction in dollars, and at the end of the year it want to convert its financial statements to the presentation currency, it may do so according to IAS 21. तो उसको ऐसा करने की इजाज़त है, और वो ऐसा करना प्रेजेंटेशन करेंसी डिफरेंट हो सकती है, वो मैंने आपको बता दिया कि उस कंपनी की कोई मजबूरी हो सकती है बिकॉज इट इज़ सब्सिडरी ऑफ अ पेरेंट कंपनी whose presentation currency is different from that of its functional currency. The process of translating from the functional currency to the presentation currency is as follows. It's a very interesting process. How we will be doing it? It is as follows. Assets and liabilities are translated at the closing rate at the end of the reporting period. तो उस रिपोर्टिंग पीरियड फॉर एग्जांपल एक ख़ास तारीख दिसंबर 31, 2019 पे क्लोजिंग हो रही है, तो उस तारीख को जो एक्सचेंज रेट होगा उस पे उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी उसको यूरो में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। दिसंबर 31 पे जो रेट था उस एक रेट को लेते हुए तमाम एसेट्स और लायबिलिटीज़ को। तो ये तो हमारी बैलेंस शीट कन्वर्ट हो गई। दूसरा पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है कि इनकम एंड एक्सपेंसेस आर ट्रांसलेटेड एट द एक्सचेंज रेट्स व्हिच अप्लाइड ऑन द डेट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस कंसर्न्ड। सो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ तो आपको पता ही है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो एक ख़ास तारीख को बनती है, इसीलिए जब स्टूडेंट्स को समझाया जाता है तो उन्हें बताया जाता है कि इट इज़ एज ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन अ स्पेसिफिक डेट, but income and expenses are spread all over the year. So how we can take one exchange rate? We cannot take one exchange rate for the income and expenses. So how we will determine a specific income was in a specific time period was happened on June, was income was
received in June or July or August. So there will be dozens of the exchange rate involved. तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, तो ये हमें सजेशन दी गई है कि इनकम एंड एक्सपेंसेस के लिए हम एवरेज रेट फॉर द ईयर ले लेंगे। वो एवरेज डिफरेंट तरीके से हो सकती है, वो हर मंथ की एवरेज हो सकती है, और इसी तरीके से जो है हम उस एवरेज को एक्सचेंज रेट की एक एवरेज ले लेंगे। डिटेल के साथ हम उसको इलस्ट्रेशन में देखेंगे कि कैसे स्टैंडर्ड हमें अलाउ करते हैं। सो द रिजल्टिंग एक्सचेंज डिफरेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो इस तरीके से जो भी रिजल्ट्स आएंगे उनको हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो इसके बाद एक और थोड़ी सी चीज़ डिस्कस कर सकते हैं हम, विच इज़ ट्रांसलेशन ऑफ ए फॉरेन ऑपरेशन। तो ये तकरीबन पिछले टॉपिक से मिलता जुलता ही है कि इफ़ एन एंटिटी हैज़ ए फॉरेन ऑपरेशन, एग्जांपल a foreign subsidiary, associate or joint venture, it will be necessary to translate the financial statements of that operation into the same currency as is used in the entity's own financial statements. For example, Suzuki Motors is working in Japan, and its subsidiary, associate or joint venture, whatsoever it is working in Pakistan. So Pakistan's Suzuki Motors is a foreign operation for the Japanese Suzuki Motors. So it will translate the PKR financial statements into Japanese currency. और ये कब पॉसिबल होगा? Only then it will be possible to include the foreign operations in the entity's financial statements by consolidation or by the equity method. तो इस तरीके से ये जो है इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। So the translation process is the same as process adopted when the translating any entity's financial statements from a functional currency to presentation currency. यही जो हम पिछली स्लाइड में डिस्कस करके आए हैं। तो ये फॉरेन ऑपरेशन को कन्वर्ट करने के जो प्रिंसिपल्स थे वही प्रिंसिपल्स यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। So that's all for now. We will be discussing a few illustrations from related to this topic, foreign currency translations. So till then, Allah Hafiz.